dear students, good morning all of you. Today we are here to start chapter number 6, retirement of a partner. Retirement or death of a partner are very much similar chapters. This is also a part of reconstitution of partnership firm. Here what happens, अगर कोई पार्टनर नहीं चाहता कंटिन्यू करना पार्टनरशिप फॉर्म में तो ही मे रिटायर फ्रॉम द फॉर्म, लेकिन जो रिमेनिंग पार्टनर्स रह जाएंगे दे कैन कंटिन्यू द पार्टनरशिप फॉर्म. अ पार्टनर मे रिटायर फ्रॉम द फॉर्म इफ देयर इज एन एग्रीमेंट टू दैट इफेक्ट. अगर पार्टनरशिप डीड में कोई एग्रीमेंट है किसी पार्टनर के रिटायर होने से कंसर्न तो पार्टनर रिटायर हो सकता है. नंबर 2, इफ ऑल पार्टनर्स एग्री टू हिज एग्रीमेंट. अगर बाकी सब पार्टनर्स एक पार्टनर के रिटायरमेंट को लेकर के एग्री करते हैं तो भी एक पार्टनर रिटायर हो सकता है. और इफ द पार्टनरशिप इज एट विल बाय गिविंग अ रिटन नोटिस टू द रिमेनिंग पार्टनर्स ऑफ हिज डिसीजन टू रिटायर. अगर पार्टनरशिप एट विल है तो जो रिटायर होना चाहता है पार्टनर वो एक रिटन नोटिस सर्व करेगा और पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो सकता है. तो 3 तरह से पार्टनर रिटायर हो सकता है. नंबर 1, एग्रीमेंट यानी कि पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग अगर उसमें कुछ ऐसा क्लॉज है. नंबर 2, अगर बाकी सारे पार्टनर्स एग्री हैं यानी कि रिमेनिंग पार्टनर्स की कंसेंट से रिटायर हो सकता है. एंड द थर्ड इज when the partnership is at will he can serve a written notice और उस नोटिस को दे करके he may retire from the partnership firm. ठीक. the retirement of a partner means reconstitution of the firm. अगर एक पार्टनर रिटायर होता है तो it does not mean कि partnership firm will come to an end. partnership firm will continue but with the remaining partners. Reconstitution, what do you understand by reconstitution of partnership? In this, old partners, the old agreement comes to an end and the new agreement comes into existence among the remaining partners. So this is the reconstitution of partnership. रिटायरमेंट ऑफ लिसन वंस मोर. पार्टनर जब रिटायर होता है तो क्या होता है कि पुराना एग्रीमेंट इज़ कमिंग टू एंड क्योंकि रेशो चेंज होगी. ठीक. तो क्या है कि पुराना एग्रीमेंट इज़ कमिंग टू एंड एंड द न्यू एग्रीमेंट इज़ कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस. हैंस दिस इज़ अ केस ऑल्सो अ केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन. नाउ वी विल टॉक अबाउट द लायबिलिटी ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर. Students, now we will discuss the liability of a retiring partner. At 2 points of time we will discuss the liability of a retiring partner. The first one is liability for the acts before retirement. जब तक पार्टनर रिटायर नहीं होता उससे पहले उसकी क्या लाइबिलिटी रहती है. A retiring partner remains liable for all the acts of the firm up to the date of his retirement. Up to the date of his retirement एक कोई भी पार्टनर उस डेट तक जिस डेट में वो रिटायर होगा he is liable for all the acts. However, a retiring partner may be discharged from his liability by an agreement between himself, third party and the continuing partners. अगर कोई पार्टनर अपने आप को बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट भी डिस्चार्ज करना चाहता है लाइबिलिटी से तो उसको एक एग्रीमेंट करना होगा अपने बीच अपने रिमेनिंग पार्टनर्स के साथ और थर्ड पार्टी के साथ. द सेकेंड वन इज लाइबिलिटी फॉर द एक्ट्स आफ्टर रिटायरमेंट. लाइबिलिटी फॉर द एक्ट्स आफ्टर रिटायरमेंट. A retiring partner also continues to be liable to the third parties for the acts of the firm even after his retirement until a public notice of the retirement is given. थर्ड पार्टी के लिए भी वो आफ्टर द
डेट ऑफ रिटायरमेंट भी लायबल रहता है। अगर वो पब्लिक नोटिस सर्व कर देगा कि नाउ आई एम नो लॉन्गर पार्टनर ऑफ दिस पार्टनरशिप फर्म एंड नो लॉन्गर आई एम responsible liable for the liabilities of the firm, after serving this notice he may discharge himself from the liabilities of a partner. Now at the time of retirement of a partner there are certain adjustments which are required. Number one, you will find a change in the profit sharing ratio. Here, instead of sacrificing at the time of admission of a partner you were calculating the sacrificing ratio, but here one partner is going and he is leaving his share, his जो उसने शेयर छोड़ा है that will be shared by the remaining partners, so hence the remaining partners will gain. So therefore gaining ratio will have to be calculated, and also there will be some change in the new profit sharing ratio of the partners. The first adjustment which is required at the time of retirement of a partner is determination of new profit sharing ratio and gaining ratio. The second adjustment is valuation and adjustment of goodwill. Valuation we have already done, the same methods will be applied here, only the accounting treatment at the time of retirement and death of a partner is different, and that we will study. Third one is revaluation of assets and reassessment of liabilities. Whenever reconstitution of partnership firm takes place, then all the assets are to be revalued and all the liabilities are to be reassessed, and therefore profit or loss on account of revaluation of assets and liabilities is to be calculated and to be distributed among the old partners in the old ratio. Next adjustment which is required is accounting treatment of or distribution of accumulated profits or general reserve. And next is computation of amount due to retiring partner. One partner is retiring, तो आप उसका टोटल ड्यूज कैलकुलेट करोगे ना कि कितना पे करना है उसको, ठीक। फिर पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर, उसका कितना पेमेंट होगा, और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है तो चैप्टर में, बट दिस इज़ नॉट इन योर सिलेबस. तो देयर आर 6 एडजस्टमेंट्स विच यू हैव टू लर्न एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर. Number 1 is determination of new profit sharing ratio and gaining ratio. Number 2, valuation and adjustment of goodwill. Number 3, revaluation of assets and reassessment of liabilities. Number 4, accounting treatment of reserves and accumulated profits. Number 5, computation of amount due to the retiring or deceased partner. And the last one is payment to the retiring partner. His final dues are to be paid to the retiring partner or to the deceased partner. Now we will learn change in profit sharing ratio. Dear students, now we will learn first adjustment which is required at the time of retirement of a partner, that is change in profit sharing ratio. Suppose ABC 3 partners are there. Previously they were sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Suppose B is retiring, और डेथ में भी सेम इसी तरह से चलेगा. Now we will talk about new ratio. Certainly the new ratio between A and C will change, क्योंकि B जा रहा है, B अपना शेयर छोड़ के जाएगा, तो B का शेयर कौन गेन करेगा, A और C. तो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो रिक्वायर्ड होती है और न्यू रेशो. न्यू रेशो क्या होता है, न्यू रेशो मतलब जो ए और सी अब शेयर करेंगे, ए और सी रिमेनिंग पार्टनर्स, दिस इज द रेशो इन विच द रिमेनिंग पार्टनर्स विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, इज नोन एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग शेयर ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर कैसे निकलता है, ओल्ड प्लस गेन. ओल्ड में गेन यदि जोड़ दें तो हमारा क्या निकल जाता है,
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. New profit sharing ratio upon retirement may have to be determined when the new profit sharing ratio is not given. एक circumstance हो सकती है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन ना हो, और दूसरी सिचुएशन हो सकती है द रिमेनिंग पार्टनर्स टेक प्रॉफिट शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इन अ स्पेसिफाइड रेशो. तो देयर मे बी टू सिचुएशंस फॉर कैलकुलेशन ऑफ new ratio. Number one is when the न्यू प्रॉफिट, अब न्यू निकालनी है और न्यू के बारे में कुछ भी मेंशन ना हो. ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग ratio is not given. और सेकेंड सिचुएशन हो सकती है when remaining partners take profit share of the retiring partner in a specific ratio. ये दो सिचुएशन हो सकती है, एक तो वो जब न्यू रेशो पता नहीं होती है, एंड सेकंड कि जब जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर रिमेनिंग पार्टनर्स एक पर्टिकुलर रेशो में गेन करते हैं. तो फर्स्ट सिचुएशन लेंगे केस वन, व्हेन वन पार्टनर रिटायर्स एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द रिमेनिंग पार्टनर्स इज नॉट गिवन. ये फर्स्ट केस हम ले रहे हैं. ठीक है, अब इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं. ABC वर पार्टनर्स, ये 3 पार्टनर्स हैं और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 1/2 रेशो 1/10. 1/2 रेशो 1/10. बच्चों इनका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, ये ओल्ड रेशो है. हम इनका डिनोमिनेटर जो है सेम कर लेंगे, यानी कि अगर हम इनका एलसीएम लें तो 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगी 5/4/1. ये रेशो आएगी. दिस इज द ओल्ड रेशो. अब व्हाट इज हैपनिंग, वो कहता है फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स. रिटायर कौन हो रहा है? ए रिटायर हो रहा है. इन केस ए रिटायर हो रहा है तो वो कहता है न्यू रेशो कैलकुलेट करो. अब ए तो चला जाएगा, तो हम इस केस में क्या मानेंगे कि न्यू रेशो, नथिंग इज मेंशन्ड, नथिंग एल्स इज गिवन इन द क्वेश्चन, ओनली द ओल्ड रेशो इज गिवन, एंड सेकेंड इन्फॉर्मेशन विच इज गिवन टू यू इज ए इज रिटायरिंग. ए रिटायर हो रहा है. अब तो न्यू रेशो क्या होगी बी और सी की नहीं मालूम कुछ भी, तो हम क्या करेंगे, यही रेशो इनका, ये प्रपोर्शन जो पहले था इनका आपस का सेम प्रपोर्शन आफ्टर एज रिटायरमेंट वही रहेगा. समझ आती है बात? जो ए के रिटायर होने से पहले बी और सी का आपस का प्रपोर्शन था वही ए के रिटायर होने के बाद भी रहेगा. समझ आती है बात? तो अब क्या है, अब तुम कहोगी तो सेम है, नहीं सेम नहीं है. देखो यहाँ पर बी का शेयर था 5/4/1 यानी कि 4/10, यहाँ था 1/10 सी का. अब क्या हो गया 4/5 और 1/5. तो दिस इज द चेंज विच यू मे फाइंड. ठीक है, फिर से समझ लो, यहाँ पर हमको न्यू रेशो के बारे में नहीं बताया था. न्यू रेशो कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था. ओल्ड रेशो गिवन थी, है ना. एक बार और थोड़ा साफ साफ देखो, ये ABC 3 पार्टनर हैं
इनकी ओल्ड रेशो 5:4:1 है, बी रिटायर हो गया। न्यू रेशो निकालने के लिए कह रहा है कैलकुलेट न्यू रेशो। ऐसे केस में हम बी का शेयर डिलीट करके कह देंगे ये रेशो है। इजी हो गया ये। अगर ये कहे कि सी रिटायर हो गया, अगर ये ऐसे कह दे कि सी रिटायर हो गया, तब क्या रेशो हो जाएगी? तब रेशो हो जाएगी 5:4 हो जाएगी। जो रिटायर हो रहा है उसका शेयर ड्रॉप करना है आपको। ठीक, समझ आती है बात? अब एक केस नंबर 2। अच्छा, इसमें फिर गेन निकालना पड़ेगा। अब गेन कैसे निकालेंगे? देखो, मान के चलो ये सी रिटायर हो रहा है। अब सी अपना शेयर छोड़ के जा रहा है, तो इसका शेयर ए और बी से, सी अपना ए कैपिटल छोड़ गया तो उसको ए और बी मिलके खाएंगे। किस रेशो में खाएंगे? अब ओल्ड गिवन है, न्यू रेशो गिवन है। अब हमें गेन निकालना है। गेन कैसे निकलेगा? गेन इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, तो ए का गेन हो गया, एज गेन इज इक्वल टू न्यू कितना था इसका 5/9 माइनस न्यू था इसका एज गेन इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। न्यू कितना है? ए का 5/9 और पुराना कितना था 5/10। ऐसा करके गेन निकल आएगा। इसी तरीके से बी का गेन निकालेंगे। बीज गेन इज इक्वल टू 4/9 माइनस 4/10। न्यू माइनस ओल्ड करेंगे तो गेन आ जाएगा। ठीक हो गया। अब केस 2। अब इसको मैंने सॉल्व नहीं किया, स्पेस कम है। सॉल्व तो आप भी कर सकते हो। केस 2, व्हेन द रिमेनिंग पार्टनर्स, केस 2 Now we will discuss the second case, when the remaining partners take share of the retiring partner in a specific ratio. A, B, C are 3 partners. We are taking one example. A, B, C are 3 partners. Their old ratio was 5:3:2. B is retiring. And one more information is given to you in the question, that B share is to be gained by A and C in the ratio of 2:1. जो B का शेयर है वो A और C डिवाइड कर लेंगे 2:1 में। B share is taken by A and C in the ratio of 2:1। यानी कि A ने 2 हिस्से ले लिए B के शेयर के और C ने 1 हिस्सा ले लिया। तो क्या हुआ हमारा? एज गेन, A ने कितना गेन किया? B का शेयर मल्टीप्लाइड बाई 2/3 और B का शेयर था 3/10। ठीक, मल्टीप्लाइड बाई 2/3, तो ये आ जाएगा 1/5। सिमिलरली आप C का गेन निकालेंगे। C's gain is equal to B share मल्टीप्लाइड बाई C ने गेन किया 1/3, तो B का शेयर था 3/10 इंटू 1/3, ये आ गया 110। समझ आ गई बात? दोनों के गेन अब आपके पास है। ओल्ड रेशो है, ओल्ड है, गेन है। अब आप क्या निकाल सकते हो इजीली? न्यू रेशो। न्यू कैसे निकलेगी? न्यू रेशो निकलेगी, न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड प्लस गेन। किस किस की न्यू निकलेगी? बी तो गया, ए और सी
ए का ओल्ड था 5/10 और गेन कितना है ए का 1/5। एलसीएम लेंगे 10 आ जाएगा, 5 + 2 7/10। अब इस सिमिलरली हम सी का निकाल देंगे। सी इज न्यू शेयर इज इक्वल टू, सी इज न्यू रेशो या शेयर इज इक्वल टू, रेशो दो कम से कम दो लोगों के बीच में होती है और इंडिविजुअल का निकालना होता है तो शेयर निकलता है। इसका ओल्ड था 2/10, गेन है 1/10, तो ये आ जाएगा 3/10। न्यू रेशो बिटवीन ए एंड सी, अब रेशो यूज करेंगे, ये वाला वर्ड यूज होगा, बिटवीन ए एंड सी इज इक्वल टू, क्या रेशो हो जाएगी 7/10, रेशो 3/10 और 7/3। ऐसे ही गेनिंग रेशो भी निकल जाएगी 2/1। ठीक, क्लियर हुई बात। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ABC are partners. One more example I am taking where entire share of the retiring partner is taken by only one partner. जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका पूरा शेयर एक ही पार्टनर गेन कर रहा है। और वो ये क्वेश्चन है, ABC 3 पार्टनर है, रेशो 2:1 है, बी रिटायर हो गया, हिज शेयर इज टेकन बाय सी, इसका पूरा शेयर सी ने ले लिया। कहता है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ए एंड सी। ऐसे केस में बच्चों ए के शेयर में बी तो चला जाएगा, ये तो रहेगा ही नहीं, तो ए का न्यू शेयर सेम रहेगा, नो चेंज। ठीक है, यानी कि 2/5 भी रहेगा और सी के शेयर में चेंज आएगा। सी का शेयर कैसे निकालेंगे, ओल्ड प्लस गेन, और ओल्ड इसका था सी का 1/5 और जो बी का शेयर था वो इसने पूरा गेन किया। ठीक है, कंप्लीटली इसी ने गेन किया है, तो इसकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगी 3/5। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन ए एंड सी इज इक्वल टू 2/5 रेशो 3/5, तो 2:3 हो गई। इलस्ट्रेशन 4, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम बच्चों। इसमें ये नया क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 4। यहाँ ABC 3 पार्टनर्स थे, इनकी ये रेशो गिवन थी, सबका डिनोमिनेटर डिफरेंट था। हमने एलसीएम लेके इनका डिनोमिनेटर इसको ठीक कर दिया, 5:3:2 हो गया। अब B इज रिटायरिंग और ये बताया जा रहा है कि B का शेयर A और C ने गेन किया 2:1 में, तो A का गेन कितना हुआ, A का गेन हुआ B शेयर मल्टीप्लाइड बाई 2/3 और इसका गेन कितना हो जाएगा, C का गेन हुआ B शेयर मल्टीप्लाइड बाई 1/3, तो B का शेयर है 3/10 इंटू 2/3, ये आ गया 1/5 और यहाँ पर आ गया 3/10 B का शेयर इंटू 1/3, ये आ गया 1/10। ये तो आपके निकल आए गेन, ओल्ड आपके पास है, गेन निकल आए। अब आप न्यू निकाल लेना, A's न्यू शेयर इज इक्वल टू
ओल्ड प्लस गेन। ए का ओल्ड क्या है 5/10 और गेन कितना है 1/5। एलसीएम 10 आ गया 5 + 2 ये आ गया 7/10। ऐसे ही हम सी का निकाल लेंगे। सी इज न्यू शेयर इज इक्वल टू सी इज न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर प्लस गेन। और सी का ओल्ड था 2/10 और गेन इसने किया था 1/10, तो ये आ गया 3/10। अब ए और सी का न्यू शेयर आ गया, न्यू रेशो आ गई। ए की आई 7/10, रेशो 3/10। अब इनकी न्यू रेशो आ गई। ये कौन कौन पार्टनर हैं ए और सी। ए और सी की न्यू रेशो है आपके पास 7/3। न्यू रेशो है 7/3। अब एक और एडमिशन हो रहा है डी का। अब एडमिशन हो रहा है डी का फॉर 1/4 शेयर। डी का एडमिशन हो रहा है, इसी क्वेश्चन में ही है ये। सेम क्वेश्चन इज कंटिन्यूड, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन। D is admitted for 1/4 share of profit, half of which was given by A and remaining share was taken equally from A and C. ये जो 1/4 शेयर का है इसका हाफ ऑफ 1/4 ये तो सिर्फ A ने सेक्रीफाइस किया, ये A का सेक्रीफाइस है। और जो रिमेनिंग इसका हाफ बचेगा, जो रिमेनिंग हाफ बचेगा वो हाफ ऑफ 1/4 उसको फिर दोनों ने इक्वली सेक्रीफाइस किया। यानी कि हाफ ऑफ 1/4 तो इन्होंने फिर ए और बी ने इक्वली सेक्रीफाइस किया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं अभी यहाँ पर साफ सफाई से ले लेती हूँ। ए और सी इनका ओल्ड रेशो हो गया, अब तो ओल्ड ही हो गया ना ये 7/3 रिटायरमेंट के बाद। डी का एडमिशन हो गया 1/4 शेयर के लिए हो गया। अब 1/4 शेयर को कैसे कैसे सेक्रीफाइस किया, ए ने सेक्रीफाइस किया 1/4 का हाफ, इसका आधा सिर्फ खाली ए ने सेक्रीफाइस किया। फिर बचा 1/4 का हाफ, यही तो रिमेनिंग बचा, इसका आधा, इसको दोनों ने फिर से सेक्रीफाइस किया ए और सी ने। कितना 1/4 का हाफ, ये तो ए का सेक्रीफाइस हो गया। और सी का कितना सेक्रीफाइस हुआ, सी का भी यही हुआ 1/4 इंटू हाफ, ये सी का सेक्रीफाइस आया समझ में। ए ने 2 बार सेक्रीफाइस किया, एक बार ये सेक्रीफाइस किया, एक बार ये सेक्रीफाइस किया। दोनों सेक्रीफाइसेस को जोड़ेंगे तो ए का सेक्रीफाइस आ जाएगा, ये सी का सेक्रीफाइस आ जाएगा। अब जब सेक्रीफाइस हमारे निकल जाएंगे, देखो यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ मैं। 1/8, एक तो ये सेक्रीफाइस है, यहाँ पर हो गया 1/16। तो ए का टोटल सेक्रीफाइस कितना हो गया, ए सेक्रीफाइस टोटल सेक्रीफाइस 1/8 प्लस 1/16, तो 16 एलसीएम हो गया। इसका टोटल सेक्रीफाइस हुआ 3/16। और सी का सेक्रीफाइस कितना हो गया, सी का सेक्रीफाइस हुआ 1/16, ये सी का सेक्रीफाइस। अब दोनों के सेक्रीफाइसेस आ गए, ए का सी का। ये ओल्ड रेशो है, अब न्यू कैसे निकलेगी, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। तो बच्चों ये था आपका कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो।
और बस अगर न्यू निकल आती है तो ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड करके गेन निकल आता है। अगर गेन गिवन होता है तो ओल्ड प्लस गेन हमारा न्यू निकल आता है। ठीक है, अब इसी के बेस पर हम आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे और उसके बेस पर जो है आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, ओके students, I am taking one more example to make you the things more clear. 3 partners are there, C, M, A and A. ये 3 partners हैं, ये A रिटायर हो गया। अब ये A रिटायर होता है तो आगे इंफॉर्मेशन है which is given to you. C acquires 4/9 of A share. जो A का शेयर है उसका 4/9 पार्ट तो C ने एक्वायर कर लिया, तो M ने कितना एक्वायर किया होगा ये नहीं मालूम, मिसिंग है। तो जब 4/9 पार्ट तो C ने एक्वायर किया है तो M ने कितना किया होगा 5/9। ठीक, क्यों 9 में से 4 हिस्से तो C ने एक्वायर कर लिए, तो 9 में से रिमेनिंग 5 हिस्से कौन एक्वायर करेगा M। तो यहाँ पर C का गेन कितना आ गया, जैसे C's गेन कैसे निकलेगा, C का गेन 4/9 इंटू A शेयर, A का शेयर कितना था 2/9, ये था 81 और इसका M का गेन कितना आएगा, M's गेन कितना आएगा, M का गेन होगा 5/9। समझ आया ना ये 5/9 कैसे आया, 9 में से 4 हिस्से तो C ने गेन किए तो रिमेनिंग 9 में से 5 हिस्से इसने गेन कर लिए इनटू A शेयर यानी कि 2/9 या गया 10/81, यानी कि गेनिंग रेशो ये हो गई आपकी। अब आपके पास ओल्ड रेशो है, ठीक है, न्यू अब गेन है। ओल्ड में गेन अगर आप ऐड कर लोगे तो यू विल गेट न्यू रेशो। न्यू कैसे निकलेगी, न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर प्लस गेन। किस किस की निकलेगी न्यू शेयर, एक तो C का निकलेगा, C's न्यू शेयर इज इक्वल टू C का ओल्ड कितना है 4/9 और गेन कितना है 8/81। ऐसे ही M का निकल जाएगा। न्यू शेयर कैसे निकलेगा, ओल्ड प्लस गेन। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि बिल्कुल और क्लियर हो जाए। यहाँ तो ऑफ वर्ड गिवन था, ऑफ तो मल्टीप्लाई करके हमने गेन निकाला था। अगर फ्रॉम गिवन है तो इट मीन्स कि गेन इज गिवन टू यू। ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्या, विकास और वरुण ये 3 पार्टनर्स हैं। दिव्या, विकास और वरुण, these are the 3 partners और इनकी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो हाफ रेशो 1/8 रेशो 3/8। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4:1:3। ये इनकी ओल्ड रेशो हो गई। आगे कहता है विकास रिटायर्स, ये रिटायर हो गया विकास। कहता है ही सरेंडर्स, विकास सरेंडर्स 1/9 शेयर फ्रॉम हिज शेयर, 1/9 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ दिव्या। इसने अपने में से 1/9 ऐसा लिखा है इसमें, विकास सरेंडर्स 1/9, फिर आगे वर्ड आ गया फ्रॉम, 1/9 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ दिव्या। दिव्या के फेवर में इसने 1/9 सरेंडर किया। ठीक है, तो दिव्या का जो ये विकास ने सरेंडर किया 1/9, तो क्या हुआ, दिव्या का ओल्ड ये है, जब फ्रॉम
ये गेन है। तो कितना हो गया विकास का गेन, सॉरी दिव्या का गेन, दिव्यास गेन इज इक्वल टू 1/9। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि वरुण ने कितना गेन किया। वरुण का गेन कैसे निकालेंगे, अब हम वरुण का गेन निकालेंगे हम, ये 1/8 में से 1/9 तो इसने दिव्या को दे दिया, तो वरुण ने कितना गेन किया होगा, वरुण्स गेन इज इक्वल टू विकास का जो शेयर था माइनस 1/9 इसको दे दिया गया, दिव्या वाला गेन हटा दिया। विकास का शेयर था 1/8 माइनस 1/9, तो इसका गेन आ जाएगा आपका 72/9 माइनस 8 1/72, इसका 1/9। दिव्या ने गेन किया 1/9 और विकास ने गेन किया 1/72, दोनों की गेन निकल आए। अब आपको न्यू निकालनी है, ओल्ड प्लस गेन। ये समझ आया? एक बार और सुनो, यहाँ पर फ्रॉम वर्ड था, फ्रॉम 1/9 शेयर फ्रॉम, विकास ने अपना सरेंडर किया 1/9 शेयर फ्रॉम हिज शेयर, तो 1/9 यानी कि जब फ्रॉम वर्ड है ये गेन गिवन है। अब इसका गेन कैसे निकालेंगे, वरुण ने कितना 1/8 में से 1/9 तो दे दिया, तो रिमेनिंग इसका गेन आ गया वरुण का। अब दोनों की गेन आपके पास है, ओल्ड में यदि आप गेन प्लस कर दोगे तो आपका न्यू शेयर आ जाएगा।